Good morning, students. Today we will start the next topic of second chapter of economics. But before starting today's topic, let's recall the things that we had done in the last lecture. Okay, in the last lecture we have learned about three sectors now, that primary sector, secondary sector and tertiary sector. We have learned about these sectors. And if we talk about primary sector, means in primary sector the most of the activities associated with nature, means like हमारी एग्रीकल्चर है, हमारी फॉरेस्ट्री है, हमारी फिशिंग है, these all activities like mining also we include in primary sector ना. And in other words the primary sector we can say agriculture or related sector also ना. And if we talk about secondary sector means that come on second place. So in secondary sector we transform the things, means the raw material into final goods, means some goods we cannot directly use, that we get from nature. So after some changes we can use them, like sugarcane in the form of sugar, cotton in the form of clothes we can use with the help of process, with the help of manufacturing. So in the second sector we include the process or manufacturing. Okay, so in secondary sector all the industries included, so that is why we can say this sector industrial sector also. Okay, so if we talk about tertiary sector means we can say in the other form service sector also, because this sector provides services to primary sector as well as to secondary sector also. Means this tertiary sector help them, means tertiary means secondary and primary sector with their services. Okay, it is helpful for their development. And in tertiary sector all the services we include, like एजुकेशन है हमारा, हेल्थ है हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, we all these things include in this tertiary sector. In the last lecture we have discussed these things. And next thing GDP also we have learned about. GDP also means gross domestic product, means in the GDP we include all the goods and services that are produced in our country in a particular period, in a particular year. Okay, so means in GDP, in that also we learnt one more thing, that in GDP we count only their values, not their numbers. Okay, and we add only final value of the services or goods. Understood? Like on that day I given the example of aloe vera also and biscuit also. See beta, in this means GDP we include only final value, we didn't count this intermediate goods. Intermediate goods means those are using for making final goods, like clothes we use. Firstly we produce or we grow cotton. After cotton plant we get thread, then with the help of thread we make clothes. So these are intermediate goods, means like जो हमारा कॉटन प्लांट्स है, कॉटन हो गया, हमारा जो थ्रेड हो गया, these are intermediate. And final goods, the clothes, the ready-made clothes that we are using, means that used by the consumers. Okay, so in GDP the value of final goods are added, and in this GDP we add only the things and goods those are produced in our country only. Okay, जो suppose if you are working outside of the country, means in foreign countries, and then you send money to your parents, that is not the part of GDP, that is the part of GNP, and that is you will read in 11th class. Okay, so in GDP, understood, in GDP we include only the things and services those are produced in our country only, and we add only final values of all the goods and services. Okay, so let's start today's topic, and today's topic is the historical change in these three sectors. Like firstly take the example of our country. When we got independence, after independence what happened, जो Britishers थे, they took all the material, all the money to Britain ना. उस टाइम पे at that time we were very poor ना. So उस टाइम पे क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन्वेस्ट किया. ठीक है, सो
अप टू 1973 1975 जो हमारा सेक्टर है, मीन्स हमारी इकोनॉमी है, उसमें किसकी सबसे ज़्यादा किसके कौन सा सेक्टर था? प्राइमरी सेक्टर। मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल जो फोकस था किस पे था? एग्रीकल्चर पे था, मीन्स प्राइमरी सेक्टर पे था। ठीक है, सो लेट्स सी बेटा, प्राइमरी सेक्टर एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड द एग्रीकल्चरल सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, प्रोडक्शन इंक्रीज। मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो वी हैव लर्नड इन 9th क्लास दैट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स जब बहुत सारी मशीनरी आई, हमने फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ? वो डेवलप हुआ ना। अब डेवलप हुआ तो इट मीन्स जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो क्रॉप्स प्रोडक्शन पहले कम होता था वो क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। अब पहले क्रॉप्स कम होती थी तो लोग अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ करते थे, बट अब क्या है कि लोगों के पास सरप्लस में थिंग्स है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, सपोज़ पहले एप्पल का प्रोडक्शन होता था तो एप्पल हम सारी यूज़ कर लेते थे, बट अब इस टेक्नोलॉजी से क्या है, जो एप्पल्स है वो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा उनका। ठीक है, तो अब क्या है कि लोगों ने क्या सोचा कि जो एप्पल्स हैं क्यों ना उनसे जैम बनाया जाए। ठीक है, या फिर और कोई जैसे जूस बनाया जाए। और ऐसे ही जो पहले वीट था वो पर्सनल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता था, अब बहुत ज़्यादा होने लगा उसका प्रोडक्शन, तो लोगों ने क्या सोचा कि वीट से क्यों ना बिस्किट बनाए जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे जो प्राइमरी सेक्टर है, स्टार्टिंग में क्या था? प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन था। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर में जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो जो लोग थे पहले मोस्टली प्राइमरी सेक्टर में लगे होते थे। ठीक है, जब उनको लगा कि जो उनका सरप्लस है वो बहुत ज़्यादा है तो उनको दूसरी चीज़ इससे प्रोड्यूस करनी चाहिए, देन सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड। ओके, सो सी बेटा, मैनी पीपल कुड नॉट टेक अप अदर एक्टिविटीज़। मीन्स स्टार्टिंग में क्या था कि प्राइमरी सेक्टर था वो डेवलप्ड हुआ, जब तक वो डेवलप्ड हुआ तो लोग जो मोस्टली थे उन्हीं एक्टिविटीज़ में बिजी रहते थे, वो दूसरे सेक्टर्स की तरफ ध्यान नहीं देते थे। इट इज़ द स्टेज ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। अब इसमें इन अर्लियर मीन्स इन लास्ट लेक्चर ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि इस प्राइमरी सेक्टर में जो मोस्टली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नेचर पर डिपेंडेंट होती है ना। नेक्स्ट थिंग कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये रियलिटी है पूरे वर्ल्ड में और हमारी कंट्री में भी। फिर टॉक अबाउट कि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है इसी सेक्टर में, मीन्स जो बहुत सारी पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता है? फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर से। ओके, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर जैसे जैसे डेवलप हुआ तो उससे बेनिफिट किसको मिला? सेकेंडरी सेक्टर को, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन बढ़ा तो लोगों ने उन थिंग्स से, उन गुड्स से दूसरे मटेरियल, दूसरी गुड्स को बनाने का सोचा। ओके, सो with the help of this the secondary sector developed. See, because of new methods of manufacturing were introduced, because लोगों के पास सरप्लस में थिंग्स थी, लाइक एप्पल से जूस बनाना, एप्पल से जैम बनाना, तो उन्होंने नई टेक्निक डेवलप्ड की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आई, इंडस्ट्रीज सेटअप की। ओके, सो फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। तो इससे जब डेवलप हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ कि फैक्ट्रीज बहुत सारी एक्सपेंड होने लगी, जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हुई। देन फार्मर्स बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज। जब फैक्ट्री सेटअप हुई तो लोगों ने क्या सोचा कि हमारी फार्मिंग के अलावा भी हम जो पार्ट टाइम के लिए, क्योंकि फार्मिंग क्या है कुछ मंथ्स के लिए होती है ईयर में, बाकी मंथ्स में वो क्या होते फ्री होते थे, तो अपने फ्री टाइम्स में उन्होंने क्या सोचा कि हम जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही है हम उनमें वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो जो बहुत सारे फार्मर्स हैं वो कहाँ से शिफ्ट हो गए? प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर फॉर द वर्क ऑफ in factories. Okay, this sector slowly become the most important sector in the total production and employment. अब slowly क्या हुआ कि आफ्टर प्राइमरी सेक्टर ये जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारी कंट्री में, जब बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हुई तो इसने भी मेन रोल जो पे किया किसमें? फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द पॉपुलेशन। मीन्स जो पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयड करने के लिए जब सेकेंडरी सेक्टर भी मेन रोल आ गया, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो गई, कुछ फार्मर्स भी प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ की साइड जो अट्रैक्ट हुए और बहुत सारे पीपल्स। ठीक है, नेक्स्ट हैंस अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस। इट मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर्स हैड चेंज। मीन्स पहले प्राइमरी सेक्टर था सिर्फ लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी जब फ्रीडम मिली थी उसके बाद अप टू 1970, बट आफ्टर 1975 जो बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होने लगी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग की, तो लोगों का इंटरेस्ट किस में गया? फैक्ट्रीज की तरफ गया। सो नाउ हियर शिफ्ट प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर। ओके, सो फर्स्टली दिस प्राइमरी सेक्टर वॉज इम्पोर्टेंट। ओके, देन
after primary sector, when production increased in primary sector, and then the people focused on another manufacturing na, then the industry set up and the people start working in this sector also. So slowly this secondary sector also become the important sector. Okay, see now primary sector developed, secondary sector also developed. Next thing, अब जो प्राइमरी सेक्टर है, इन अर्लियर लेक्चर ऑल्सो आई डिस्कस, और इन सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो, सपोज कि हमने शुगर केन है, अब शुगर केन से शुगर बनता है, ऐसा तो नहीं है कि शुगर केन जो है उनके पैर लगे हुए वो अपने आप इंडस्ट्री में चल के चले जाएंगे, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, शुगर केन को जहाँ पे शुगर बनती है उस इंडस्ट्री तक उसको लेकर जाना पड़ेगा, मीन्स वी नीड ट्रांसपोर्टेशन. ओके, अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, अब हम मीन्स इंडस्ट्री सेटअप हुई, अब इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी चाहिए, लोगों को हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, लोगों की एजुकेशन भी होनी चाहिए. तो दीज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. सो इन द सेम वे आफ्टर दीज सेक्टर्स द third sector, that is service sector, tertiary sector, that is also started developing. Okay, so see, in the past 100 years there has been another shift from secondary to tertiary sector in the developed countries. जो developed countries है, हमारी कंट्री कैसी है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक USA है, ठीक है. अब उसमें क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द शिफ्टिंग है वो कहाँ से, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में आ गई. मीन्स वहाँ पे जो सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा है. गवर्नमेंट अपने लोगों की हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट, द सर्विसेज हैव बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल है किसका, टर्शरी सेक्टर का. Now see beta, most of the working people also employed in the service sector, these are observed in the developed countries. Means developed countries में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उन कंट्रीज़ की वो किस में इंक्लूड है, किससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कौन से सेक्टर से, टर्शरी सेक्टर से. अंडरस्टूड. हमारी कंट्री कैसी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है. तो हमारी कंट्री में क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो किस में बिजी है, ऑल दो प्राइमरी सेक्टर में. अब प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि प्रोडक्शन तो कम है बट एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में है. सेकेंडरी सेक्टर, अब सेकेंडरी सेक्टर से जीडीपी का पार्ट हमारी कंट्री में ज़्यादा है, मीन्स हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ है. ओके, सो अंडरस्टूड दिस थिंग. इफ़ यू टॉक अबाउट देयर हिस्ट्री, सो फर्स्टली प्राइमरी सेक्टर वॉज इम्पॉर्टेंट. व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज देन शिफ्ट टू प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर. ओके, सो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन मीन्स मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. ओके, एंड इफ यू टॉक एंड स्लोली व्हेन प्राइमरी सेक्टर डेवलप्ड, सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट, देन द shift to tertiary sector. Tertiary sector means all the services because they need services, okay, for their development. So government pay attention on these services. So in the third we can talk about service sector. So at that time, at present time, we talk about developed countries. So there most of the employment in this sector, tertiary sector, and most of the GDP they gain from this sector. Understood beta? So if you want to take the screenshot of this, you can take. Okay.